হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আন একাডেমি। তোমাদের স্বাগত জানাই আন একাডেমির অফিशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डब्ल्यूपी एग्जाम। तो गाइस, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। আর তার সাথে সাথে হ্যাপি কালী পুজো। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর ভালো করে পুজো কাটিও। চলো গাইস, কি পড়বো আমরা আজকে, সেটাতে যাওয়ার আগে দেখে নিই আমাদের আনএকাডেমির ব্যাপারে কিছু অ্যাডভান্টেজ গুলো, কেন আমরা আনএকাডেমি চুজ করব, কেন আনএকাডেমি এত সাকসেসফুল। তো গাইজ, সবচেয়ে আগে তোমরা তো এই ইউটিউব চ্যানেলে ওয়েস্ট বেঙ্গল যাবতীয় প্রত্যেক পরীক্ষার নোটিফিকেশন পেয়ে যাচ্ছ, আর প্রত্যেক সাবজেক্টের প্রিপারেশন কি করে করবে তোমরা তার গাইডেন্স গুলো পেয়ে যাচ্ছ, কোন চ্যাপ্টার তোমাদের পড়তে হবে। এছাড়া আমার নাম প্রীতি কুমারী, আমি মাস্টার্স ইন জুওলজি। যদি আমি তোমাদের কথা বলি যে আনএকাডেমি কেন তোমরা চুজ করবে, তাহলে এই কথাটা জাস্টিফাই করার জন্য বলতে পারি যে ডেইলি লাইভ ক্লাসেস তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, স্ট্রাকচার্ড কোর্স এখান থেকে পাচ্ছ, লাইভ টেস্ট এন্ড কুইজেস, আনলিমিটেড অ্যাক্সেস, আর এছাড়া টপ এডুকেটর পাচ্ছ। একটা সাবজেক্টের অনেকগুলো এডুকেটর, যার পড়া বুঝতে পারবে তার ক্লাসগুলো তোমরা নিতে পারছো। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যখনই তোমরা কোনো ব্যাচ বা কোনো কোর্স পারচেস করছো, একটা কোড ব্যবহার করো, PRITI, মানে প্রীতি অ্যাজ আ কোড ব্যবহার করলে তোমরা 10% ডিসকাউন্ট পাবে। ওকে গাইস, নেক্সট যদি তোমাদের শিডিউল নিয়ে কথা হোক, তাহলে যখনই তোমরা কোনো ক্লাস পারচেস করছো, কোর্স পারচেস করছো, নিজের টাইমের অনুযায়ী তোমরা ক্লাস নিতে পারছো। ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ব্যারিয়ার হবে না। ইংলিশ, হিন্দি, এছাড়া বেঙ্গলি, এইসব ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদের যাতে তোমরা কমফোর্টেবল শেখা, সেই ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে তোমাদের পড়ানো হবে। যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় রেকর্ডিং ক্লাসেস অ্যান্ড স্টাডি ম্যাটেরিয়াল গুলো তোমরা নিতে পারছো, বেনিফিট গুলো নিতে পারছো। যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তাহলে এডুকেটরকে জিজ্ঞেস করবে, এডুকেটর তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার করবেন। এছাড়া যে কুইজ গুলো অ্যাপে হয় সেটা পোলের মাধ্যমে হয়। অ্যান্ড এটা খুবই ভালো কথা যে তোমরা যে টেস্ট অ্যান্ড কুইজ দিচ্ছ তার রিপোর্ট অ্যান্ড অ্যানালিসিস তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ। এছাড়া PDF অ্যান্ড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালও তোমরা পাচ্ছ। আর এইসব তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে পারবে যখনই কোনো সাবস্ক্রিপশন নেবে, সেটা 1, 3, 6, 12 বা 24 মান্থসের হতে পারে, যেটা তোমাদের কমফোর্টেবল সেই অনুযায়ী তোমরা সাবস্ক্রিপশন নিতে পারছো। বাট অ্যাকর্ডিং টু মি তোমরা 12 মান্থের নাও, সেটাই বেস্ট হবে, কারণ তোমাদের মেন্স অ্যান্ড প্রিলিমস দুটোই প্রিপেয়ার করতে হবে। তো গাইজ, যখনই কোনো কোর্স পারচেস করো তখনই এই কোডটা ব্যবহার করবে। কোড কি হলো? PRITI। এই কোডটা ব্যবহার করলে তোমরা 10% ডিসকাউন্ট পাবে যে কোনো কোর্সের জন্য। যে কোনো কোর্স মানে ব্যাংক, SSC, রেলওয়েজ, IIT, JEE, NEET, UPSC, PSC, যে কোনো কোর্সের জন্যই এটা অ্যাপ্লিকেবল। চলো এবার চলে আসি আমাদের আজকের টপিক। আমাদের আজকের টপিক কি? আমরা আজকে পড়বো ইন্ডিয়ার কতগুলো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোম্পানি হোক বা হয়তো কোনো গভর্নমেন্টাল স্কিম হতে পারে, তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কে। এখান থেকে আমাদের মোস্ট প্রবাবলি একটা বা দুটো কোশ্চেন চলে আসে পরীক্ষায়। তো তোমাদের প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর গুলো বা কোম্পানির, কোন কোম্পানির কোন সিইও আছেন তার নামগুলো তোমাদের জেনে যেতে হবে, রাইট? চলো দেখে নিই ফার্স্ট কোশ্চেন এখানে কি জিজ্ঞেস করেছে। ফার্স্ট কোশ্চেন তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে, হু ইজ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ পোকার স্টার ইন্ডিয়া। ওকে গাইস, তো তোমরা ভালো করেই জানো যে যদি আমরা পোকার স্টার ইন্ডিয়া জিজ্ঞেস করছে, মানে একটা গেমিং প্ল্যাটফর্ম বলতে পারি, তো তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কে, ছবিটা দেখে ভালো করেই চিনতে পারছো যে महेंद्र सिंह धोनी इज करेक्ट आंसर, राइट गाइस। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मेरे ख्याल से बहुत कुछ बताना हो ऐसा जरूरी तो लगता नहीं है, सभी को पता है इनका नाम, राइट। চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখো কি জিজ্ঞেস করেছে। নেক্সট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে যে হু ইজ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ ই বাইক গো, রাইট। তো যখনই তোমাদের ই বাইক গো জিজ্ঞেস করছে, মানে এটা কি একটা ইলেকট্রিক ভেহিকল প্ল্যাটফর্ম, সেখানে প্রোভাইড করা হয় এই কোম্পানির দ্বারা। তো তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কাকে বানানো হয়েছে, তো দেখে নি ছবি কি বলছে। তো ছবি দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে हरभजन सिंह इज करेक्ट आंसर, राइट गाइस। तो याद रखिएगा, ई बाइक गो का अगर आपसे ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? हरभजन सिंह इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नी।
হু ইজ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ স্পোর্টস আড্ডা, রাইট গাইজ? তো স্পোর্টস আড্ডা কি? স্পোর্টস আড্ডা একটা রিপোর্টিং চ্যানেল তোমরা বলতে পারো, যেখানে তোমরা কি পাচ্ছ, যেখানে তোমরা स्पोर्ट्स रिलेशन रखा प्रत्येक न्यूज पाचो। तो खेल संबंधित न्यूज जो आपको प्रोवाइड करता है, वैसे इस चैनल का ये नाम है स्पोर्ट्स अड्डा बोलकर, राइट? तो आपको बताना है कि ये जो स्पोर्ट्स अड्डा है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बिल्कुल पिक्चर में कौन दिख रहे हैं? तो ब्रेटली साहब दिख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ये पेसर रह चुके हैं, मतलब बॉलर रह चुके हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रेटली हैं वो हैं ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स अड्डा के। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WWF, राइट गाइस? तो WWF मतलब वो जो फाइटिंग चलता है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ये साफ साफ। तो गाइस वर्ल्ड वाइड फंड की पहले बात कर लूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1961 में ये वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो स्टैब्लिश हुआ था, राइट? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, राइट? तो ये कुछ बातें हैं। हेड क्वार्टर से भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग हेड क्वार्टर को भी थोड़ा सा देख के चलिएगा। मतलब हु का, WTO का, मॉनेटरी फंड जो है, इन सब के हेड क्वार्टर्स कहाँ है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड की मैं बात करी थी 1961 এটা এস্টাবলিশ করা হয়েছে গ্ল্যান্ড সুইজারল্যান্ড তার কি বল গ্ল্যান্ড সুইজারল্যান্ডে তার হেড কোয়ার্টার। অ্যান্ড এছাড়া আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে ইন্ডিয়াতে WWF নিজের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কাকে নিযুক্ত করেছেন। তো আনসার আমাদের কি হয়ে যাবে? আচ্ছা, লোগো যদি কখনো জিজ্ঞেস করে তাহলে মনে রাখবে প্যান্ডা এর লোগো। অ্যান্ড এছাড়া তোমরা দেখতে পাচ্ছ কার ছবি দেখতে পাচ্ছ, হি ইজ বিশ্বনাথন আনন্দ, রাইট গাইজ? চেস প্লেয়ার ইনি, ভালো করেই তোমরা জানো যে চেস প্লেয়ার ইনি। তো এনাকে নিযুক্ত করা হয়েছে ইন্ডিয়ার WWF ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। ওকে, যদি বিশ্বনাথন আনন্দের কথা বলি তাহলে একটা কথা মনে রেখো যে ইনি সেকেন্ড হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড ইন্ডিয়ার পেয়েছেন। সেকেন্ড হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড আমাদের কোনটা? তাহলে আনসার হয়ে যাবে পদ্ম বিভূষণ। ওকে গাইস, পদ্ম বিভূষণ, পদ্ম বিভূষণ ইনি পেয়েছিলেন 2007 আর যদি আমরা বলি যে কেন আমরা পদ্ম বিভূষণ, তো অনেকজনই পেয়েছে, কিন্তু নাম কেন মুখস্থ রাখবো? কারণ ফার্স্ট প্লেয়ার যিনি পদ্ম বিভূষণ পেয়েছেন 2007। ওকে গাইস, তো মনে রাখবে কিছু ইম্পর্টেন্ট पॉइंट গুলো। एंड WWF কি করছে? नेचर रिलेशन रखा, माने नेचर संबंधी क्या करते हैं ये लोग? प्रकृति को प्रोटेक्शन देने के लिए हर एक तरीके का कोशिश करते हैं। तो गाइज মনে রাখবে যে নেচার প্রোটেকশনের জন্য WWF কাজ করে। নেক্সট কোশ্চেন দেখে নাও, হু ইজ দ্য ফার্স্ট নন ফুটবলার? দেখো, নন ফুটবলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ লা লিগা। তো গাইজ লা লিগা একটা ফুটবল ব্র্যান্ড তোমরা বলতে পারো, সরি একটা ফুটবল লিগ। ওকে, তো সেখানে তোমাদের বলতে হবে যে কাকে, মানে নন ফুটবলার একজনকে তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর রাখা হয়েছে, তো তার নাম কি? तो गैर फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर लालीगा के बने हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये लालीगा है क्या। तो गाइज যখনই তোমাদের জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ লালিগা মানে কিসের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে তোমাদের আনসার হবে যে এটা স্পেন অর্গানাইজ করে এন্ড স্পেনের বিগেস্ট ফুটবল লিগ তোমরা বলতে পারো। ওকে, বিগেস্ট ফুটবল লিগ এটা। তো গাইজ স্পেনের বিগেস্ট ফুটবল লিগ অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যদি তোমাদের কখনো জিজ্ঞেস করে যে লা লিগা 2020 তে কে জিতেছে, তো মনে রাখবে রিয়াল ম্যাড্রিড ইজ কারেক্ট আনসার। ওকে, রিয়াল ম্যাড্রিড জিতেছে লা লিগা ফুটবল লিগ 2020 তে। এবার দেখে নি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কে, তাহলে আমাদের হিটম্যান জানো তোমরা কে? রোহিত শর্মা। তো 2020 তে রোহিত শর্মার নাম অনেক জায়গাতে তোমরা শুনেছো, এর আগেও আমরা অ্যাওয়ার্ড ডিসকাস করেছিলাম। তো রাজীব গান্ধী খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ডে তুমি অন্যান্য 4 জনের সঙ্গে এনার নাম শুনেছিলেন, মানে 2020 তে 5 জন রাজীব গান্ধী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, তার মধ্যে একজন রোহিত শর্মা, রাইট গাইস? চলো নেক্সট। আর এছাড়াও অনেক জায়গাতে তোমরা নাম শুনেছো রোহিত শর্মার। তো 2020 তে রোহিত শর্মা খুবই ফেমাস হয়েছেন, সেই জন্য তোমরা প্রত্যেক জিনিসটা মনে রাখবে। ওকে, চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখে নি, হুজ ইজ সরি
who is elected the UNEP Goodwill Brand Ambassador again for 2 years more. মানে আগে থেকেই ইনি ছিলেন, কিন্তু এনার টেনিওর 2 বছর एक्सटेंड करा হয়েছে। ओके, तो गाइज आपको बताना है कि यूएनईपी के गुडविल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर को कौन है जिनका टेन्योर जो है 2 साल और बढ़ा दिया गया है। ओके, তো গাইজ আনসার কি হয়ে যাবে? সবচেয়ে আগে ফার্স্ট অফ অল এটা জানি যে ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম হলো ফুল ফর্ম, অ্যান্ড কখন স্টাবলিশ হয়েছে? 1972 স্টাবলিশ হয়েছে। আর केनियार नायरोबी, ओके, केनिया का नायरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। কেনিয়ার নাইরোবি ইজ কারেক্ট আনসার। হেডকোয়ার্টার যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে, আর ইনি কি মানে কোন কি কাজ করে এই ইনস্টিটিউশনটা, তাহলে এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছে। এনভায়রনমেন্ট কি করে প্রোটেক্ট করতে পারি আমরা সেই জন্য। ওকে, तो आंसर की हो जाए एखाने, तो गाइज आंसर हो जाएगा दिया मिर्जा। इनके ही टेन्योर, ये पहले से ही थी, इनके टेन्योर को 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द डेवलपमेंट एंड पीस ब्रांड एम्बेसडर ऑफ UNADAP। ओके गाइज, तो पहले हम लोग चले आते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो गाइज সবসময় মনে রাখবে যে यूनाइटेड नेशन Association for Development and Peace। ওকে, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস। তো এইটা যদি আমরা কথা বলি, আনসার কি হয়ে যাবে? আনসার হয়ে যাবে তোমাদের, এই নামটা তোমরা হয়তো আগে শোনোনি, কিন্তু এম নেত্রা ইজ কারেক্ট আনসার। এম নেত্রা কোথা থেকে বিলং করছেন? তামিলনাडु থেকে। আর इन्हीं নিজের सेविंग्स 5 लाख इनकी सेविंग थी, और उस पूरे सेविंग को इन्होंने कोरोना के लिए, कोरोना काल में इन्होंने दान कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद इनके बारे में आप लोगों ने मोदी जी के मन की बात में भी सुना होगा। तो अगर आप लोग ये मोदी जी की मन की बात सुनते हो, तो उसमें एम नेत्रा मैम का नाम जरूर आया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कोरोना काल में इन्होंने अपने सेविंग्स के 5 लाख रुपए पूरे के पूरे दान दे दिए इन्होंने। सोचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ Dream11। तो आप लोग बिल्कुल आईपीएल से जुड़े हुए हो, इतने लगभग 1.5 महीने से आप लोग आईपीएल देख रहे हो, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि Dream11 जो है वो आईपीएल 2020 को स्पॉन्सर कर रही है। और साथ ही साथ अगर मैं Dream11 की बात करती हूँ, तो 2008 में ये Dream11 जो है वो बना है, मतलब आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बिल्कुल नाम जो है वो बिल्कुल परिचित है, महेंद्र सिंह धोनी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही इसको पढ़ा था, कोरोना वाला जो जितना भी अपडेट था उसमें हम लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप पढ़ा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया था, जिसकी वजह से किसी भी कोरोना पेशेंट को ट्रैक किया जा सकता था, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। एंड इसके अलावे आरोग्य सेतु ऐप जो है वो उन्होंने क्या किया था, 50 मिलियन डाउनलोड्स जो है 13 डेज में कंप्लीट करने वाली, मतलब सबसे फास्टेस्ट डाउनलोड अगर किसी ऐप की हुई है, रिकॉर्ड जिसके नाम पे बना है वो है आरोग्य सेतु ऐप, राइट गाइस? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपको बताना है, तो সবাই জানো যে ছবিটা দেখে মানে বোঝা যাচ্ছে যে अजय देवगन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो गाइज आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए? अजय देवगन। ठीक है, अजय देवगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साक्षी मलिक इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। तो गाइज साक्षी मलिक का नाम अगर आता है तो हम लोगों को याद रखना होगा कि ये है कौन, ये एक रेसलर है, राइट? तो साक्षी मलिक जो है वो एक रेसलर हैं, और इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रियो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने वाली फर्स्ट फीमेल रेसलर है ये। ब्रोंज मेडल जीतने वाली फर्स्ट फीमेल रेसलर है ये। ओके गाइस, तो याद रखिएगा आप लोग कि साक्षी मलिक के नाम पे हम लोगों को याद रखना है कि रियो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, और फर्स्ट फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता है। ओके, एंड 2015 में है ये, 2015 में ये हुआ था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो गाइस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपको ये मैंने आपको
ये अपडेट दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम अब क्या हो गया है, बदलाव। ओके, बदलाव इज करेक्ट आंसर, बदलाव। तो बदलाव का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो आपका नाम चेंज होकर हो गया है, इट इज बदलाव। ओके, चलो, तो ये है हमारी साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इंडियन is the hepatitis B elimination brand ambassador of who? तो हु आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी काफी चर्चे में रहा है, किस लिए, कोरोना वायरस के लिए। इन्होंने ही कोरोना वायरस जो है वो एक पैंडेमिक सिचुएशन है जिसको अनाउंस करने वाले कौन होते हैं, किसी भी पेंडेमिक सिचुएशन को अनाउंस करने वाले हु होते हैं। ठीक है, WHO। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हम लोग देख लेते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। बिल्कुल हमारे अमिताभ बच्चन जो हैं, जिनको हम लोग मिलेनियम के स्टार के नाम से जानते हैं, सुपरस्टार के नाम से जानते हैं, तो अमिताभ बच्चन इज करेक्ट आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस कि हेपेटाइटिस बी जो है वो क्या है, एक वायरल डिजीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर साइंस के लिए हम आपको क्वेश्चन बताना चाहें तो তোমরা মনে রাখবে যে হেপাটাইটিস বি ইজ আ ভাইরাল ডিজিজ এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, হেপাটাইটিস বি তে আমাদের কোন বডি পার্ট अफेक्ट হয়, তাহলে আমাদের আনসার হয়ে যাবে লিভার। ওকে, লিভার। চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখে নিই। নেক্সট কোশ্চেন তোমাদের কি জিজ্ঞেস করেছে, হু ইজ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ ফোন পে? তো ফোন পে তোমরা জানো যে অনলাইন মানি ট্রান্সফার হয়, তোমরা যে কোনো জায়গাতে মানে বিল পেমেন্ট করতে পারো, বা এছাড়া মোবাইল রিচার্জ অন্যান্য যদি টাকা ট্রান্সফার করা হয় তো ফোন পে থেকে করতে পারবে, জাস্ট লাইক গুগল পে। তো সেখানে তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে যে ফোন পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এখন কে। তো খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অ্যান্ড তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুজন, কিন্তু এখানে তোমরা आमिर खाনের नाम पाচ্ছ, तो आमिर खान इज करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको याद रखना होगा आलिया भट्ट का भी नाम यहाँ आता है। तो ब्रांड एम्बेसडर आप लोग देखे हो, एड भी दिखाता है ना टीवी में कि फोन पे के एड जो हैं वो दोनों कर रहे हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं आमिर खान, है ना। तो आपको याद रखना होगा आमिर खान एंड आलिया भट्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 9stack? तो 9stack जो है वो भी आपका एक गेमिंग प्लेटफॉर्म ही है। तो आपको बताना है कि कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो बिल्कुल सुरेश रायना इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस, মনে রাখবে যে 9stack মানে দেখো লেখা আছে পোকার উইথ রায়না। তো গাইস এটাও একটা গেমিং প্ল্যাটফর্ম তোমরা জানো, এন্ড সুরেশ রায়না এটার ব্র্যান্ড एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी ग्राम उद्योग बोर्ड? तो गाइस बिहार में खादी को सपोर्ट या प्रमोट करने के लिए किसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो बिल्कुल बिहार के ही हैं ये, और बिहारी बाबू बोल सकते हैं या कालीन भैया बोल सकते हैं आप। मिर्जापुर से ये काफी फेमस हो चुके हैं कालीन भैया के नाम से। तो पंकज त्रिपाठी इज करेक्ट आंसर। देखो क्या लिखा हुआ है, कालीन भैया करेंगे खादी का प्रचार प्रसार, राइट गाइज। तो মনে রাখতে পারো তোমরা কি করে মনে রাখবে যে, तो इसके लिए आपको बस एक लाइन या एक बात याद रखनी है। जैसे आप लोगों को पता है ना मिर्जापुर से ये कालीन भैया के नाम से फेमस है, तो कालीन जो है वो खादी की बन सकती है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको याद रखना है कि कालीन जो है वो खादी की बनती है। तो कालीन भैया जो है वो खादी को प्रमोट कर रहे हैं बिहार में, ठीक है। लेकिन ये जो खादी कंपनी है ना, खादी कंपनी, ओके, तो ये जो खादी कंपनी है इन्होंने अपना एक ब्रांच जो है वो अरुणाचल प्रदेश में भी स्टैब्लिश किया है। ओके गाइस, तो इसको याद रखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पंकज त्रिपाठी इज करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। ओके, याद रखने का तरीका हमने क्या बताया, कालीन जो है वो क्या है, खादी से बनती है। तो कालीन भैया जो है वो खादी का ऐड कर रहे हैं, मतलब प्रमोशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है आप लोगों को, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शॉपी? तो गाइस शॉपी के बारे में अगर पहले बता दूं तो शॉपी जो है वो एक सिंगापुर की कंपनी है। तो सिंगापुर की कंपनी है आपकी शॉपी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखो गाइस ब्रांड एम्बेसडर बोलने का क्या मतलब होता है।
ब्रांड एम्बेसडर बोलने का मतलब होता है जैसे एक रोल मॉडल हम लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ब्रांड एम्बेसडर। देखो रोल मॉडल का मतलब क्या होता है कि हम किसी की तरह बनना चाहते हैं, तो वो मेरे रोल मॉडल हो गए, बिल्कुल। तो ये कंपनी जो है ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए रखती है ताकि आप उनको देखकर उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बारे में जानो या उनकी तरह दिखने की कोशिश करो। तो ये सारे जो है ये बिजनेस टेक्निक है, ये आपको भी समझ में आती है। तो गाइज देख लो, शॉपी के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्तुगल के फुटबॉल प्लेयर है। राइट गाइज, तो आपको पता है ये, तो गाइज पोर्तुगल के ये फुटबॉल प्लेयर है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास? ठीक है, एडिडास कंपनी है, आपको पता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारी मिस वर्ल्ड रह चुकी है, मानुषी छिल्लर इज करेक्ट आंसर। एंड 2017 की मिस वर्ल्ड कौन थी? मिस वर्ल्ड थी मानुषी छिल्लर। ओके, तो फिर हमारी फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन थी? फर्स्ट इंडियन कौन थी? फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड। तो फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड की बात अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन मेल या फीमेल किसी भी कैटेगरी में पूछ सकता है, तो यहाँ आपको याद रखना होगा 1966 में बनी थी रीता फारिया। ओके, रीता फारिया ये हमारी फर्स्ट मिस वर्ल्ड है, 1966 में ये मिस वर्ल्ड बनी थी। ओके गाइस, तो रीता फारिया जो है वो हमारी फर्स्ट मिस वर्ल्ड रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। विच इंडियन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? PWF ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, उस कैंपेन का नाम क्या है? आई एम बैडमिंटन। ओके, ये कैंपेन का नाम है। किसने स्टार्ट किया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो किसने इस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसको बनाया है? ओके, দেখো তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে যে ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন একটা ক্যাম্পেইন চালিয়েছে, তার নাম কি? আই এম ব্যাডমিন্টন। তো কোশ্চেন কি হলো যে আই এম ব্যাডমিন্টন ক্যাম্পেনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কাকে নিয়োগ করা হয়েছে? गाइस आंसर क्या हो गया? पीवी सिंधु इज करेक्ट आंसर। देखो इसी में लिखा हुआ है, इस एड में ही लिखा हुआ है ब्रांड एम्बेसडर आई एम बैडमिंटन। ओके, तो पीवी सिंधु इज करेक्ट आंसर। एंड पीवी सिंधु का नाम और किस लिए याद रखना है आपको? आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ओलंपिक्स में अगर फीमेल सिंगल की बात करते हैं, बैडमिंटन फीमेल सिंगल प्लेयर की बात करते हैं, तो सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली प्लेयर है। ओके, तो याद रखना है कि सिल्वर मेडल जीतने वाली ओलंपिक में फीमेल सिंगल में सिल्वर जीतने वाली ये पहली फीमेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। विच इंडियन क्रिकेटर इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ELSA कॉर्पोरेशन? ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ELSA है क्या? तो गाइज मने राखबे जे ELSA इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ओके गाइस, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो गाइस बिल्कुल आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा है, अजिंक्य रहाणे इज करेक्ट आंसर। तो মনে রাখবে इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच অ্যাসিস্ট্যান্ট কর্পোরেশন যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে অজিঙ্ক্য রাহানে ইজ কারেক্ট আনসার। নেক্সট, হু ইজ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ IDFC ফার্স্ট ব্যাংক? IDFC ফার্স্ট ব্যাংক, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক যদি তোমাদের এমডি বা সিইও জিজ্ঞেস করা হয়, এমডি এন্ড সিইও, তাহলে নাম হয়ে যাবে ভি বৈদ্যনাথন। ওকে, এবার কোশ্চেন এসছে যে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কে হয়েছেন, তাহলে আনসার হয়ে যাবে बिल्कुल, तो गाइस अमिताभ बच्चन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो नाम में भी जैसा वजन, आवाज में भी वैसा वजन होना चाहिए, है ना?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, विच एक्ट्रेस इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MPL, तो मोबाइल प्रीमियर लीग, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर फीमेल पूछा है। तो गाइस बिल्कुल तमन्ना भाटिया इज करेक्ट आंसर, और उसके साथ ही साथ आप क्या याद रखेंगे, मेल अगर पूछता है तो विराट कोहली इज करेक्ट आंसर। ओके, तो तमन्ना भाटिया एंड विराट कोहली जो है वो मोबाइल प्रीमियर लीग को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ असम कृषि क्षेत्र। देखो असम हो या कोई भी स्टेट हो, वहां पे ब्रांड एम्बेसडर जो है बहुत सारे कैटेगरीज में रहते हैं। तो ये कृषि क्षेत्र का पूछा हुआ है, अगर पर्यटन विभाग का पूछेगा तो फिर अलग हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कहाँ कौन सा है। ওকে, দেখো আমি বলেছি যে কোনো স্টেটেরই যদি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বলা হয় তাহলে আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি হয়। এখানে তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে যে আসাম কৃষি ক্ষেত্রের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কাকে নিয়োগ করা হয়েছে। তো গাইজ একদম আনসার তোমাদের কি হয়ে যাবে, आंसर हो जाए इन्हीं একজন म्यूजिशियन जार नाम जुबीन गर्ग। ओके, जुबीन गर्ग इज करेक्ट आंसर। और ये कौन है, ये एक संगीतकार हैं। तो आपको याद रखना है असम कृषि क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखो क्या है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा। तो गाइज नाडा जो है एंटी डोपिंग कंपनी है, सॉरी एंटी डोपिंग एसोसिएशन है। तो आपका नाम पूरा क्या हुआ नाडा का, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, डोपिंग एजेंसी। ओके गाइस, तो हमारे एंटी डोपिंग नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो बिल्कुल सुनील सेठी इज करेक्ट आंसर, सुनील सेठी को बनाया गया है। एंड अगर मैं इस एजेंसी की बात करूं तो गाइज মনে রাখবে 2005 এই এজেন্সিটা বানানো হয়েছে কোথায়, এর হেডকোয়ার্টার নিউ দিল্লি। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, इसको 2005 में बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और एकदम सेम चीज आपको वर्ल्ड लेवल पे भी मिलता है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी है जिसको वाडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेम ही है, बस एक वर्ल्ड है और एक हमारा खुद का नेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। देखो स्वच्छ भारत अभियान के बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन के हिसाब से आंसर करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर कौन हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। इनके अलावा प्रियंका चोपड़ा भी का भी नाम आता है 2020 में, वो भी ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छ भारत अभियान की। लेकिन अब स्वच्छ भारत अभियान जो है उसका नाम चेंज हो चुका है गाइस। तो মনে রাখবে যে स्वच्छ भारत कैंपेन এখন আমরা বলি सुंदर भारत। ओके, सुंदर भारत मिशन जो है या सुंदर भारत अभियान कैंपेन आप लोग बोल सकते हैं। तो सुंदर भारत आपको याद रखना है। नाम चेंजेस जो भी हुए हैं उसका एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। 2020 में जितने लेटेस्ट नेम चेंजिंग है, दैट मीन्स स्कीम या कोई मिनिस्ट्री या फिर आपका किसी भी स्टेट या सिटी का नाम चेंज हुआ है, तो उसका एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हो। ओके, तो अमिताभ बच्चन इज करेक्ट आंसर गाइस। अमिताभ बच्चन जो है उनको स्वच्छ भारत मिशन या सुंदर भारत अभियान का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत अभियान और सुंदर भारत अभियान फर्स्ट सिटी माने क्लीनेस्ट सिटी हिसाबे हमरा कार नाम जानी, इंदौर इज करेक्ट आंसर। ओके, इंदौर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के अलावे भी एक ग्रीन पीस रिपोर्ट आती है, मतलब एक ग्रीन पीस कंपनी है जिसकी रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा झारखंड का झरिया वो सबसे गंदा जगह है, मतलब डर्टीएस्ट प्लेस अगर मैं बोलूं इंडिया में तो झरिया झारखंड, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ असम टूरिज्म। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, पर्यटन विभाग में असम के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बिल्कुल नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, प्रियंका चोपड़ा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑसम असम, राइट। तो गाइज और यहाँ पर देखो राइनोसेरोस की फोटो बनी हुई है ना, तो असम जो है वो मेनली राइनोसेरोस के लिए जाना जाता है, वन हॉर्न राइनोसेरोस। ओके, तो प्रियंका चोपड़ा इज करेक्ट आंसर गाइज। মনে রাখবে যে असम टूरिज्म যদি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর জিজ্ঞেস করা হয় তো প্রিয়ঙ্কা চোপড়া একদম কারেক্ট আনসার হয়ে যাবে। হু ইজ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ তেলেঙ্গানা। তো তেলেঙ্গানা স্টেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কাকে নিয়োগ করা হয়েছে, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, हमारी जो टेनिस की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सानिया मिर्जा। तो बिल्कुल सही याद रखिएगा, মনে রাখবে যে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ তেলেঙ্গানা যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে আনসার কি হয়ে যাবে, সানিয়া মির্জা ইজ কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন, হু ইজ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ এমপি। মধ্যপ্রদেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সেপ্টেম্বর 2019 কাকে বানানো হয়েছে। তো গাইজ
একদম তোমাদের আনসার কি হয়ে যাবে গোविंदा। ওকে, तो छोटे मियाँ को बनाया गया है, राइट गाइस। तो याद रखिएगा कि आपने बड़े मियाँ का नाम दो जगहों पर पढ़ लिया। एक तो आपका क्या बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान में भी आपने अमिताभ बच्चन का नाम पढ़ा, एक बैंक के लिए आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम पढ़ा। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी अगर पूछे तो अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है। तो जब बड़े मियाँ आए हैं तो छोटे मियाँ आएंगे ही, है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि एमपी स्टेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सितंबर 2019 में किसको बनाया, तो गोविंदा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम। সিকিমের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে आंसर কি হয়ে যাবে, तो हमारे जो म्यूजिक के बादशाह हैं जिनको ऑस्कर भी मिल चुका है, ए आर रहमान इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है মনে রাখবে যে সিকিম স্টেটের যদি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে একদম आंसर তোমাদের হবে ए आर रहमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योगा आयुर्वेदा फॉर हरियाणा। তো যদি হরিয়ানার যোগা এন্ড আয়ুর্বেদের জন্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর জিজ্ঞেস করা হয় তো একদম ঠিক এই চারটের মধ্যে যিনি যোগ থেকে যুক্ত আছেন তার নামই বলবো আমরা, तो बाबा रामदेव इज करेक्ट आंसर। जब आपसे योग एंड आयुर्वेद पूछ रहा है तो बिल्कुल बाबा रामदेव बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा। যদি ত্রিপুরার জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে आंसर কি হয়ে যাবে, तो पिक्चर में देखिए नाम किसका दिख रहा है, दीपा कर्मकार इज करेक्ट आंसर। तो गाइस बिल्कुल याद रखिएगा कि दीपा कर्मकार जो हैं, जो एथलीट हैं, तो आपको याद रखना है कि त्रिपुरा के लिए ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं को चुना गया है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एक वन लाइनर देख लेते हैं। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग कुछ वन लाइनर में देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। দেখো ফার্স্ট কি দেওয়া আছে, জেএসডব্লিউ সিমেন্ট যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে সৌরভ গাঙ্গুলি এন্ড সুনীল ছেত্রী ইজ কারেক্ট আনসার। ওকে, জেএসডব্লিউ সিমেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি এন্ড সুনীল ছেত্রী। ই বাইক গো আমরা পড়লাম যে হরভজন সিং ইজ কারেক্ট আনসার। নেক্সট দেখে নি, নেক্সট তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে যে ওকালেস যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে রোহিত শর্মা ইজ কারেক্ট আনসার। আর আচ্ছা একটা কথা আর মনে রাখবে যে রোহিত শর্মা আর একটা প্রমোট করেছেন রোহিত ফর রাইনো। ওকে, এটাও উনি প্রমোট করেছেন। আর এছাড়া লালিগা আমরা পড়েছিলাম যে স্পেনের বিগেস্ট ফুটবল লিগ, তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কাকে বানানো হয়েছে, রোহিত শর্মা। ওকে, नेक्स्ट देखो बजाज अलियांस के आयुष्मान खुराना एंड आयुष्मान खुराना के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ की तरफ से इंडिया में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, यूनिसेफ की तरफ से इंडिया में आयुष्मान खुराना को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नो डाउट बहुत अच्छे सिंगर हैं एंड एक्टर भी अच्छे हैं, राइट। और इनकी मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला है, तो अंधाधुन को नेशनल अवार्ड मिला है, तो उसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। बेस्ट एक्टर में भी आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड की बात कर रही हूँ मैं, आईफा अवार्ड की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जब भी नेशनल अवार्ड आपको पूछा जाता है इस ईयर का तो याद रखिएगा बेस्ट एक्टर में आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल को मिला है। ठीक है, आयुष्मान खुराना फॉर अंधाधुन एंड विकी कौशल फॉर उरी। ओके, नेक्स्ट देखो पेटीएम फर्स्ट गेम, तो सचिन तेंदुलकर इसके ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावे अगर कभी भी आपको पूछा जाता है कि आकाश मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को नेट वगैरह की तैयारी करवाता है, जेई की तैयारी करवाता है, तो आकाश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, स्टडी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, अगर आपको उसका पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको याद रखना है युवराज सिंह। ओके, युवराज सिंह इज करेक्ट आंसर। और अगर आपसे कभी पूछता है वेदांतु, ये भी आपको पता है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो वेदांतु अगर पूछता है तब भी आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आमिर खान। ठीक है, तो आमिर खान हमने फोन पे के लिए भी देखा, उनका नाम आया, वेदांतु ने भी आमिर खान को बनाया हुआ अपना ब्रांड एम्बेसडर। चलो तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट लर्निंग भी एक आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली। तो लेकिन विराट कोहली के नाम पे आपको और भी बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे। अगर मैं हिमालय ब्रांड की बात करती हूँ तब भी विराट कोहली का नाम आता है, मान्यवर की बात करूं, मोहे की बात करूं तब भी विराट कोहली का नाम आता है। तो बहुत सारे जगहों पर आपको विराट कोहली का नाम मिलना है। ओके, नेक्स्ट देख लो, लेकिन ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ये आपको ज्यादातर याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है
एसर इंडिया, एसर जो है वो आपको पता है एक टेक्नोलॉजी मतलब एक कंप्यूटर की कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद इज करेक्ट आंसर। और सोनू सूद ने कोरोना के सिचुएशन में, पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत हेल्प किए हैं किनको? जो मजदूर, प्रवासी मजदूर थे उनके लिए, राइट। तो इसी वजह से उनको एसडीजी के तरफ से क्या मिला? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। तो इसको याद रखना है कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो एसडीजी के तरफ से किसको मिला है? बिल्कुल सोनू सूद को मिला है। ओके, नेक्स्ट देखो, सेट टायर जो है, सीएट टायर, सीएट टायर जो है ये भी आमिर खान के नाम पे ही जाता है, तो इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिंत्रा फॉर ब्यूटी सेगमेंट, ब्यूटी सेगमेंट पूछा हुआ है ना गाइज, तो दिशा पटानी इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ब्यूटी सेगमेंट ना दिया हुआ हो देन कियारा अडवाणी इज करेक्ट आंसर, कियारा अडवाणी इज करेक्ट आंसर। ओके, তো মনে রাখবে যে মিন্ত্রা বিউটি সেগমেন্ট যদি দেওয়া আছে তাহলে দিশা পাটানি, কিন্তু যদি শুধু মিন্ত্রা দেওয়া আছে তাহলে কিয়াरा अडवाणी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा कि बिहार खादी को कौन प्रमोट कर रहा है? पंकज त्रिपाठी जी प्रमोट कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट देखो, मेवो फिट जो है वो मंदिरा बेदी इनको प्रमोट कर रही है। फास्ट ट्रैक परफ्यूम कैडबरी लैक्मे मैबलिन, मेबलिन की अगर मैं बात करूं तो अनन्या पांडे इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके अलावे अगर मेबलिन में और भी किसी फीमेल एक्ट्रेस की बात करूं तो आलिया भट्ट का नाम आ जाता है। तो आलिया भट्ट जो है फोन पे में भी हमने इनको देखा था। इसके अलावा मेबलिन को भी ये प्रमोट करती हैं। और हाँ, नोकिया में भी इनका नाम आता है। ओके गाइस, नोकिया में भी इनका नाम आता है, बट नोकिया में एक और प्लेयर का नाम आता है, मतलब एक और रेसलर का, सॉरी एथलीट का नाम आता है, जिनका नाम मैं बताऊं, मेरी कॉम। ओके, तो मेरी कॉम जो है वो भी नोकिया से जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी की अगर बात करूं तो नितिन गडकरी इसको प्रमोट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके ब्रांड एम्बेसडर अगर मैं बताऊं तो अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो अक्षय कुमार हो जाएगा अगर आपको रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, गवर्नमेंट एड मास मैरिज स्कीम, तो यश और राधिका, यश जो है वह एक्टर है और उनकी वाइफ राधिका, ये उनको प्रमोट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट एड मास मैरिज होता है उसको। नेक्स्ट देखो, नाडा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो सुनील सेट्टी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। एंड अगर आपसे कभी वाडा, वाडा का मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो मॉन्ट्रियल इज करेक्ट आंसर। ओके, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर अक्षय कुमार की बात करती हूँ तो हाल फिलहाल में आप लोग जो बहुत मन से खेलते थे पबजी, तो पबजी का ही एक और वर्जन क्या आया है? पबजी जो है वो फौजी गेम में चेंज हो चुका है, मतलब इंडिया ने इसको प्रमोट किया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको फौजी गेम को प्रमोट करने वाले कौन है, तो अक्षय कुमार इसका करेक्ट आंसर, और आप लोगों को ये बात पता भी है। नेक्स्ट चले आते हैं, वीजा जो एक पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इसको कौन प्रमोट कर रही है? तो पीवी सिंधु। आई एम बैडमिंटन कैंपेन को भी पीवी सिंधु प्रमोट कर रही थी, इसको भी पीवी सिंधु प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका वीवो एस सीरीज को सारा अली खान एंड जेबीएल, जो आपका म्यूजिक सिस्टम वगैरह आता है ना, ईयरफोन वगैरह आता है, तो उसको भी सारा अली खान प्रमोट कर रही है। गेट पे भाई पेप्सिको, और असम की अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर की बात करती हूँ तो हिमा दास, जिनको हम लोग गोल्डन गर्ल के भी नाम से जानते हैं, तो ये आपका प्रमोट कर रही है इन कंपनीज को। उबर ईट्स, नोकिया, वीको, इसको आलिया भट्ट प्रमोट कर रही है। नवीन एजुकेशन लिमिटेड या नवीन एजुकेशन लिमिटेड, फैनमोजो जो है बहुत कम ही आपको पूछेगा, तो पृथ्वी शॉ इज करेक्ट आंसर। फोन पे आमिर खान एंड आलिया भट्ट होगा यहाँ पे आंसर। policyx.com, तो वीरेंद्र सहवाग इज करेक्ट आंसर गाइस। तो policyx.com को वीरेंद्र सहवाग प्रमोट कर रहे हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड फर्स्ट क्राई और कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन इज करेक्ट आंसर। आईसीआईसीआई बैंक भी अगर पूछता है तब भी अमिताभ बच्चन का नाम आता है। ओके, नेक्स्ट और एक चीज, आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम की जो बात की जाती है उसको भी अमिताभ बच्चन ही प्रमोट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है,
लियोनार्डो ऑलिव ऑयल और टाटा संपन्न की बात करूं तो संजीव कपूर, बहुत रेयर केस में ये आपको पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड फिल्म मेकर जो शेखर कपूर हैं, उनको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग काउंसिल, तो जो कि पुणे में है, अनुपम खेर की जगह बाद में फिर शेखर कपूर को रखा गया है। और आपको पता भी है कि फिल्म के लिए भी अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे मतलब जिस एजेंसी के द्वारा सिखाया जाता है, वहां पर शेखर कपूर को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे जो क्वेश्चन के फॉर्म में मिले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी कुछ सीईओ एंड बाकी जो स्टेट के अगर ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक सेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो याद रखिएगा, ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर जहां से आपको एक दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे, तो हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वापस से गाइस, हैप्पी दिवाली, अच्छे से अपनी दिवाली मनाइए, लेकिन हाँ, इस पेंडेमिक में जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और साथ ही साथ दूसरों को, अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम चलाया था ना, योर फैमिली, सॉरी, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिल्कुल ये आपकी फैमिली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सब तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड खुद भी सेफ रहिए। तो गाइज, सेफ दिवाली एंड थैंक यू सो मच। Take care. Bye bye. Stay home. Stay safe.